آپ کی بولی صادق ہے خاتون شاکانیہ؟ ہاں غلام، ہمارے حوالے کر دو اور ازبیلا کے جہاز پر آ کر قیمت وصول کر دو۔ دوسرے غلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غوث نے پھر لالچ کیا، لیکن اس سے قبل میں بول پڑا۔ ہم دونوں ساتھ فروخت ہوئے ہیں غوث، جالود بھی میرے ساتھ ہی جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، مالکہ کو بولنے دو، اس کی بات میں دخل اندازی مت کرو، غوث لجاجت سے بولا۔ اور اگر تم نے فضول بکواس بند نہ کی تو؟ میں نے کڑی نگاہوں سے غوث کو دیکھا اور وہ بغلے جھانکنے لگا۔ پھر اس نے نیم مردہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ پسند کریں۔ اور پھر ہمیں شاکانیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ہم دونوں چبوترے سے اتر آئے اور شاکانیہ کے غلاموں نے ہمیں گھیر لیا۔ لوگ پائی گاز کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی پر ششتر تھے۔ ہمیں 2 گھوڑے پیش کیے گئے۔ شاکانیہ غوث کو ساتھ لے کر بندرگاہ چل پڑی، جہاں اس کا جہاز ازبیلا کھڑا ہوا تھا۔ سفید خوبصورت کشتی کے ذریعے ہمیں سمندر میں کھڑے ہوئے عظیم الشان جہاز پر لایا گیا اور پھر اس کشتی میں زر و جواہر کے انبار لا کر غوث کے حوالے کر دیے گئے۔ جہاز کے عرشہ پر کھڑے ہو کر ہم غوث کی مسکراتی کیفیت دیکھتے رہے اور وہ اتنی دولت حاصل کر کے نیم دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ رہے ہو جالود؟ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ساحل تک پہنچتے پہنچتے اس کی حرکتیں قلب بند نہ ہو جائے۔ یہی لگتا ہے قیاس، لیکن اب ہمیں اس سے کیا؟ یہ شاکانیہ کیا کوئی مشہور نام ہے؟ ہاں، اگر یہ وہی شاکانیہ ہے تو ہم زیتون کے جنگلات کی سب سے بڑی ریاست کی ملکہ کے غلام بن گئے ہیں، اور زیتون کی تجارت کے لیے اس کی ریاست سے کوئی بڑی ریاست نہیں۔ اس کی ریاست کا شہنشاہ کون ہے؟ کوئی نہیں، شاکانیہ ہی اس ریاست کی مالکہ ہے، اور اس کا شمار یونان کی خطرناک ترین عورتوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کاندھے پر سیاہ عقاب موجود ہے، بلا شبہ یہ شاکانیہ ہی ہے۔ اور پھر اس کا عظیم الشان جہاز، چاروں طرف نگاہ ڈالو، اس سے بڑا جہاز اور کوئی موجود ہے کیا؟ میں نے دور تک کے سمندر کو دیکھا، لاتعداد چھوٹے بڑے جہاز کھڑے تھے، جبکہ اس وقت یہ پائیگاس کے ساحل پر پہنچا تھا جب سمندر خالی تھا اور یہاں صرف ایک جہاز تھا۔ یہ سارے جہاز موسم بہار کے کاروبار کے ہیں، میرا مطلب ہے ان پر غلاموں کے تاجر اور خریدار آئے ہوں گے۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ دلچسپ منظر ہے۔ میں نے جہاز کے عرصے پر کھڑے کھڑے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بڑی کشتیاں سمندر میں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں اور ساحل پر خوب رونق تھی۔ تاجروں کے لیے ساحل پر ہی بازار لگا دیے گئے تھے۔ غرض عجیب ماحول تھا، اور سمندر میں سورج کا تباہ غروب ہو رہا تھا اور اس کے نارنجی لہر یہ پانی پر جگمگا رہے تھے۔ تب چند لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ تم لوگ اب یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اور تمہیں تمہاری آرام گاہ دکھا دی جائے۔ میں نے جالود کی طرف دیکھا اور ہم دونوں شانے ہلا کر ان کے ساتھ چل دیے۔ پورا جہاز سامان آرائش کی حسین چیزوں سے آراستہ تھا اور خوبرو حسینائیں چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ رنگین محرابیں بنی ہوئی تھی اور ان کے درمیان موٹے خوشنما قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک دالان میں لے جایا گیا اور اس سے متصل کمرے میں ہماری رہائش گاہ بتا دی گئی۔ کیا غلام باہر لان میں رہے گا اور تم اندر؟ ہمیں لانے والے میں سے ایک نے کہا۔ شاکانیہ کا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تعمیل ہوگی، جالوت بولا، اور پھر ان لوگوں کے کہنے کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ یوں مجھے تنہائی میسر آئی اور میں اپنی اس غلامی کے بارے میں سوچنے لگا۔ فکر و تردد کی کوئی رمق تو ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھی۔ کہیں میں بھی مجبور ہوں گا اور کسی بھی جگہ ہوں گا، میری اپنی انفرادیت کون چھین سکتا تھا؟ میں نے تو اپنی ذات پر لاتعداد تجربات کیے تھے، اور یہ تجربہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ جہاز پر روشنیاں جگمگا اٹھیں۔ چند حسین خادمائیں میرے کمرے میں آ کر چمدان روشن کر گئی۔ باہر دالان میں بھی روشنیاں جاگ اٹھیں۔ میں کافی دیر تک اندر رہا اور پھر باہر دالان میں نکلا جہاں جالوت موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تنہائی سے اکتا گئے۔ ہاں جالوت، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو ہر ماحول میں خود کو ضم کرنا آتا ہے، لیکن تم نے نئی غلامی قبول کی۔ تھوڑا سا وقت گزرنے دو جالوت، تم بھی غلام نہیں رہو گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ تم اب میرے ساتھ ہو اور میں حالات بدلنے والوں میں سے ہوں۔ تم میری قوتوں سے واقف نہیں ہو، لیکن گزرنے والے لمحات کے ساتھ ہوتے جاؤ گے تو بہت کچھ جان جاؤ گے۔ ہاں، مجھے تمہاری شخصیت بڑی انوکھی لگتی ہے۔ تم اتنی بڑی قیمت ادا کر کے خریدا گیا ہے کہ غلاموں کی تاریخ میں کوئی اتنا قیمتی غلام نہ ہوگا۔ لیکن ذرا یہ تو بتاؤ، وہ لڑکی کون تھی جو تمہیں خرید نہ سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس کا نام گلشار تھا، اور وہ جو بعد میں مجھ پر دولت لگانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس کا باپ اور مقامی تاجر الفرٹس تھا۔ میں نے جالود کو الفرٹس کی مختصر کہانی سنا دی۔ تم عجب ہو، ایک ایسی زندگی مل رہی تھی جو عیش و عشرت سے بھرپور تھی، تو پھر تم نے اسے قبول کیوں نہ کیا؟ نہیں میرے دوست، میری گردش حیات ہے۔ میں رک جاؤں تو نبض کائنات رک جائے۔ مجھے تحریک پسند ہے،
और मैं करार कबूल नहीं करता। मैं तुम्हारी इंतहा तक नहीं पहुंच सकता। मैं तुमसे बहुत कमजोर हूं। न जाने तुम्हारे वजूद में कौन सी कुव्वतें पोशीदा हैं। जालूत बोला और मैंने मुझसे मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। फिर खूब रात गए हमें खाने की पेशकश की गई और हम दोनों ने इस दौरान में खाना खाया। चंद खादमाएं हमारे पास थीं और हमारी ज़रूरियात पूरी कर रही थी। इसके बाद वो वापस चली गईं। रात को हम आराम की नींद सो गए और दूसरी सुबह जहाज़ पर ऐलान हुआ कि लंगर उठाए जा रहे हैं। हम अर्शा पर आ गए। इस दौरान हमने एक बार भी मलका शाकानिया को नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त वो अर्शा पर खड़ी थी और समंदर से किश्तियां ऊपर उठाई जा रही थीं। स्याहुकाब बदस्तूर उसके शाने पर बैठा हुआ था और वो बड़ी अजीब लग रही थी। इस औरत के बारे में क्या ख्याल है जालूद? मलका के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, खतरनाक और दलेर औरत है। मुझे उसने इतनी चाह से क्यों खरीदा है? मुमकिन है तुम्हें चाहने लगी हो। इसके अलावा तुम ऐसी अनोखी शय हो कि हर शख्स तुम्हारे हसूल का ख्वाहा हो। वाह, दोस्ती निभा रहे हो? नहीं, हकीकत कह रहा हूं। जालूद हंस कर बोला। फिर दो गुलाम हमारे पास आकर खड़े हो गए। ये दोनों यूनान के किसी पसमानदा इलाके के थे और हमसे दोस्ती के ख्वाहा थे। इन्होंने अपना तारुफ कराया और फिर इनमें से एक बोला, तुम दोनों भी अजीब हो। एक चांद की मानित चमकदार और दूसरा आबनूस का पहाड़। यहाँ बड़े बड़े ताकतवर मौजूद हैं। मुमकिन है तुम्हें इन पहाड़ों से टकराना पड़े। क्या मतलब? मलका शाकानिया ताकत की रसिया है और अक्सर जहाज पर खून रेज मुकाबले होते हैं। गोया समंदर में ये तफरीहात भी होती हैं। जो कुछ होता है तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा, लेकिन दर हकीकत हम लोग इस जहाज के सफर की आरजू करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सफर नित नई दिलचस्पियों का हामिल होता है। क्या अनोखी तफरीहात की शायक है मलका? खूब, लेकिन इसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? सिर्फ 3 दिन। अगर रात के वाकयात न होते तो शायद वो यहाँ से अभी न जाती। रात के वाकयात तुम्हें मालूम नहीं? नहीं, हम जल्दी सो गए थे। रात को तो हथियार निकल आए थे। अगर एल्फर्ड्स वापस न चला जाता तो जरूर खून रेजी होती, लेकिन जब हम सब हथियारों से लैस होकर आए और हमने उसकी किश्तियों पर तीर अंदाजी शुरू कर दी तो वो वापस चला गया। हाँ, अगर उसने खुले समंदर में ताक़ुब करने की कोशिश की तो फिर खून रेजी यकीनी है। एल्फर्ड्स? मैंने दिलचस्पी से उन दोनों की तरफ देखा। हाँ, मकामी बाशिंदा है, शराब का बहुत बड़ा ताजिर। कोई सर फिरा ही मालूम होता है। उसने जवाब दिया और जालूद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो एल्फर्ड्स की कहानी मेरी जुबानी सुन चुका था। बहरहाल जाहिर है हम ये कहानी सबको तो नहीं सुना सकते थे। जहाज की रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गई। मल्लाह पूरी तनदही से अपने कामों में मसरूफ हो गए। पादमानों के रुख बदले गए और फिर जहाज साहिल छोड़ने लगा। देव पहकर जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटता जा रहा था और एक बार फिर समंदर के सफर की इब्तदा हो गई थी। मैं अर्शा पर खड़ा दूर होते हुए साहिल को देख रहा था और मेरे नजदीक जालूद भी ख्वाबों में खोया हुआ था। शाकानिया अपनी जगह से हटकर कहीं चली गई थी। तब जालूद एक तवील सांस लेकर बोला, आओ क्यास, अपनी जगह चलें। न जाने इसे किस वक्त हमारी जरूरत पेश आ जाए। गुलाम मेहमान नहीं होते। मैं वापस चला आया, लेकिन शाम तक हमारी खातर मदारत मेहमानों की तरह ही हो रही थी। दोपहर के खाने में भी एहतमाम था और बड़े एहतराम से हमें खाना खिलाया गया। और फिर शाम को हम जिस वक्त अर्शा पर निकले तो 2 खादमाएं हमारे पास पहुंच गई। बेहतर यह है कि इस वक्त आराम करो। दरअसल खबात तुम्हारे लिबासों की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो तैयार कर लें तो तुम्हें मलका शाकानिया के सामने पेश किया जाए। ये कब मुमकिन है? मैंने पूछा। बस अब से थोड़ी देर के बाद रात की महफिल गर्म होने वाली है, खादमा ने जवाब दिया। खादमा के चले जाने के बाद मैं और जालूद ने एक दूसरे की शक्लें देखी और मुस्कुराते हुए वापस आ गए। खादमाओं का कहा गलत नहीं था। इस गुफ्तगू के थोड़ी ही देर बाद चंद खादमाएं अंदर आ गईं और उन्होंने 2 लिबास हमारे सामने रख दिए। मेरे लिए एक जरकार कबा थी और जालूद के लिए ऐसा लिबास जो उसके जिस्मानी खतूत को नुमाया कर दे। हमसे कहा गया कि हम खूब गौसल करके ये लिबास से तन कर लें। जरा ये भी बताओ कि तुम्हारी मालका किस फितरत के मालिक है और मुझे कुर्बानी के जानवरों की तरह क्यों तैयार किया जा रहा है ताकि तुम्हारी कुर्बानी दे सके। गोया ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हाँ, तुम्हें अब कुर्बान होना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब वक्त से कबल नहीं बताया जा सकता। खादमाएं चली गईं। मेरे बदन से खुशबुओं की लपेटें उठ रही थी। बाहर निकला तो जालूद मौजूद था। उसने मुझे देखा और देखता ही रह गया। फिर पुरशौक अंदाज में आगे बढ़ा। तुम्हें देखकर कभी कभी शुबा होने लगता है। वो क्या? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। तुम किसी तौर गुलाम नहीं हो सकते। तुम्हें जिस मलका शाकानिया से ज्यादा पुरस्रार मालूम होते हो। सच बताओ, तुम कौन हो? खोया अब तुम भी वही अहमकाना गुफ्तगू करोगे जो दूसरे करते रहे, मगर इन लोगों ने मेरी हैसियत अजब बना दी है। खुश नसीब हो क्यास, जालूद मुस्कुरा कर बोला। वो क्यों? जरा मेरी खुश नसीबी से मुझे भी तो आगाह कर दो। मलका शाकानिया का मंजूर नज़र उसकी रियासत का हुक्मरान भी बन सकता है। ये ना सही, लेकिन
तुम शहनशाहों की सी जिंदगी ही बसर करोगे। वैसे सूरत के बारे में मेरी राय ज्यादा अच्छी नहीं है, ताम शक्लो सूरत की वो इतनी बुरी भी नहीं, मतलब कि तुम्हें किसी ज़हनी तकलीफ का शिकार होना पड़े। जालूत बकवास करता रहा। वो खुद भी बहुत शानदार नजर आ रहा था। इस लिबास में उसका तूफानी बदन फटा पड़ रहा था। रात हो गई और जहाज पर तेज रोशनियां जगमगा उठी। वो सुबह रवि से समंदर में तैर रहा था। फिर वही खादमाएं आईं और हम दोनों को मलका के हजूर तलब किए जाने का हुक्म सुनाया। मैं और जालूत चल पड़े। जिस जगह में ले जाया गया था वो जहाज के अरशे का इंतहाई सिरा था, लेकिन इसे हसीन महराबों से आरास्ता किया गया था। यहाँ गुलगारी भी की गई थी और गमलों में हसीन फूल खिले हुए थे। नीचे सब्ज घास के रंग का कालीन बिछा हुआ था और रोशनियां काफी तेज थीं। एक जरकार तख्त पर मलका शाकानिया इंतहाई हसीन लिबास में दराज थी। उसके कुर्बो जवार में बैठी हुई हसीन लड़कियां हल्के सुरों में बरबत बजा रही थीं, जिसकी धुनें दूर दूर तक गूंज रही थीं। इतरबेज हवाएं चल रही थीं और माहौल काफी खूबसूरत था। मलका शाकानिया ने मुझे देखा और एकदम उठकर बैठ गई। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने हाथ उठाए और साज बंद हो गए। अजीब सी कैफियत हो गई थी उसकी, बस सहर ज़दा सी थी और चारों तरफ सकूत तारी हो गया था। तब वो संभली। बैठ जा, उसने आहिस्ता से कहा और दोनों हाथों से सर थाम लिया। वो परेशान सी नजर आ रही थी। फिर उसने अपने बाएं तरफ रुक करके कहा, तन्हाई, मैं मुकम्मल तन्हाई चाहती हूँ। और खादमा ने उसका हुक्म दूसरों तक पहुंचा दिया। एक एक करके तमाम लोग उठ गए। तब उसने जालूद से कहा, तुम भी जाओ, मैं कल तुमसे मुलाकात करूंगी। जालूद ने गर्दन खम की, एक मुस्कुराती निगाह मुझ पर डाली और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मैं मलका के पास रह गया और वो दीवाना वार मुझे देख रही थी। क्या तुमने कभी आईना देखा है या किसी ने तुम्हें यह हैसियत नहीं बख्शी? मैं मलका के अल्फाज का मतलब नहीं समझ सकता। तुम किसी तो और गुलाम नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो और बाजार में किस तरह आ गए? मैं नहीं मानती। मैं आपका गुलाम हूँ। आपने मुझे खरीदा है। इससे कबल कहाँ थे? पाइगास में। और इससे कबल? उसने मुस्कुराते हुए कहा। दिन की बनिस्बत वो यकसर बदली हुई लग रही थी। उसकी आंखों में शराब का खुमार था और खदोखाल में नरमी महसूस हो रही थी। एक गुलाम की जिंदगी का आप तसव्वुर कर सकती हैं मलका आलिया? नहीं, मैं ज़ीरक हूँ। मैंने जहाँ देखे हैं यूँ लगता है जैसे तुम कोई भटके हुए देवता हो, या फिर तुम्हें आसमान से कोई सजा मिली। तुम इस जहान के मखलूक नहीं लगते। ये आपका हुस्न ज़न है, वरना मैं आपका गुलाम। तुम्हें तो गुलाम कहकर शर्मिंदगी होती है। तुम गुलाम नहीं हो। सच बताओ, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें देखकर शश्तर रह गई हूँ। मलका के हुक्म से सरताबी मेरी मजाल नहीं। अगर कोई दूसरी बात होती तो मैं अर्ज कर देता। मेरा दिल नहीं मानता, मैं तस्लीम नहीं करता। लेकिन अगर तुम देवता हो तो मैं खुद को देवी समझती हूँ। मैंने तुम्हें एक गुलाम की हैसियत से खरीदा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह चमकने वाला गुलाम मेरी तकदीर का मालिक भी बन सकता है। एक क्यास, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आज़ाद। मालका, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ खाना दिल से कैसे निकालूं? तुमने तो मेरे हवास छीन लिए। मैं खादिम हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सर झुका दी। लेकिन दूसरे लम्हे वो मेरी शक्ल देखने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे देवताओं ने मेरा इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें जमीन पर भेजा हो। बेशक मैं बागी हूँ अपनी जात और माहौल से, लेकिन तुम्हारे बदन को दागदार करने का तसव्वुर भी मेरे लिए मुमकिन है। तुम तकद्दुस के पुत हो। मैंने गहरी सांस ली। तकलीफ दे ख्याल से मुझे निजात मिल गई थी। ये औरत उम्र रसीदा थी, पुख्ता कार थी। जमाने के सर्द गर्म उसके वजूद की हर जुम्बिश से नुमाया थे। उसके गुलाम की हैसियत से अगर मुझे उसके तसर्रुफ में रहना पड़ता तो मेरे लिए खुशगवार नहीं था। लेकिन ये देवताओं का चक्कर दिलचस्प है। यूं तो अद्वार में पिसने वालों ने मुझे मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ नाम दिए थे, लेकिन यह हैसियत अगर मेरे काम आ रही है तो मुझे इससे जरूर फायदा उठाना चाहिए। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारी मुस्कुराहट! देवताओं की कसम, मैं बेहद खुश नसीब हूँ। मैंने तुम्हारी कीमत अदा करने की सआदत हासिल की है। ये मुस्कुराहट सूरज की इस किरण की मानिद है जो सबसे पहले जमीन को सुबह की आमद का पैगाम देती है। मुझे बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? मेरा नाम इक्यास है। हाँ, तुम्हारे वजूद की रोशनी इस बात का पता देती है। इसके अलावा तुम और क्या पूछना चाहती हो मलका? इस तरह सरे बाजार कैसे आ गए? अगर आसमान के राज जमीन पर आया होने लगे तो देवताओं और इंसानों में क्या फर्क रह जाए? तो तुमने तस्लीम कर लिया। गोया मेरा ख्याल दुरुस्त था। मेरी खुशबख्ती अब किसी शक को शुबा का शिकार नहीं है। बिलाशुबा मेरे ऊपर बरकतों का नजूल हो गया। लेकिन मुझे बताओ, मैं इस जहाज पर तुम्हारे लिए क्या करूं? और ये भी बताओ, तुम्हारी आमद मेरे लिए कौन सी खुशियां लाई है? तुम हर तरह से एक मुतमईन औरत हो शाकानिया। तुम बताओ क्या चाहती हो? मैंने सवाल किया। शाकानिया क्या चाहती? क्या यह तुम पर आया नहीं है? लेकिन अफसोस, उम्र की इस मंजिल में आकर मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल रही है।
यहाँ खुद को खुश नसीब कहूँ या बद नसीब, मैं क्या कहूँ खुद को। मैं तेरे दुख तेरे ख्वाब जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम वाकिफ हो अख्यास, बिलाशुबा तुम वाकिफ हो। तमाम बातों से मेरे दिल का राज जान लो। तमाम अलामतें वही हैं, मेरे ख्वाब, मेरे बचपन के ख्वाब जो मेरे जहन से निकल भी चुके थे। एक तवील अरसा गुजर गया। हाँ, यूँ लगता है जैसे सदियां बीत गई हूँ। मैं छोटी थी, बहुत छोटी सी, शायद 10 या 11 साल की। मेरा बाप गडरिया था, जंगल में भेड़ें चराता था। चूंकि मेरी माँ बचपन ही में मर गई थी, इसलिए मेरा बाप मुझे अक्सर साथ रखता था। एक छोटी सी आबादी में हमारी रहाइश गाह थी। फिर एक दोपहर जब आसमान से कहर बरस रहा था, सूर्य की तपिश अरूज पर थी, मेरे बाप ने मुझे एक चट्टान के साए में सुला दिया और मैं गहरी नींद सो गई। तब मैंने देखा बुलंदोबाला पहाड़ों की चोटियों से एक काफिला उतर रहा है। वो सब के सब नूरानी चेहरों वाले थे, उनके सफ़ेद लिबास हवाओं से हिल रहे थे। वो मेरे पास पहुंच गए और फिर उन्होंने मुझे चकाया। इनमें से एक ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और अपने लिबास से एक ताज निकाल कर मेरे सर पर रख दिया। तब उसने कहा कि मैं शाकानिया हूँ और मैं शाकानिया बन के, समझे क्यास, मैं शाकानिया बन के। इससे कबल तुम्हारा नाम शाकानिया नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, मेरे बाप ने मेरा नाम शाह ही रखा था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं शाकानिया हूँ। खूब, फिर? मैं दिलचस्पी से पूछा। फिर उन्होंने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और मेरे पेट को खोल दिया। इन्होंने एक खूबसूरत पत्थर मेरे पेट के अंदर पोशीदा कर दिया। मैंने पूछा वो कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अजमीर है, हवाओं का रखवाला अजमीर, और ये मेरे बतन में परवरिश पाएगा और इससे जन्म लेगा। इस ख्वाब के बाद मैं जाग गई, लेकिन मेरे बतन में भारीपन था और मेरे सर पर ताज मौजूद था। मेरे बाप ने जब भेड़ों को इकट्ठा किया और मुझे देखा तो ताज देखकर हैरान रह गया। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे पूरा वाकया सुना दिया और वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मुझे बहुत से सजदे किए और फिर खुशी खुशी वापस आकर ये कहानी बस्ते वालों को सुनाई, लेकिन बस्ती के तारीख निगाह न समझ सके। न उन्होंने यकीन किया, बल्कि मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ये ताज कहीं से चोरी किया है। फिर दोनों बाप बेटी को हुकूमत वक्त के हवाले कर दिया गया। यहाँ भी मेरे बाप की इन बातों को दीवानगी करार दिया गया और ताज मुझसे छीन लिया गया। यही कर्म किया गया था हमारे ऊपर कि हमें कत्ल नहीं किया गया, लेकिन मेरे बाप को मेरी सच्चाई पर यकीन था। वो मुझे वापस लेकर बस्ती गया और यहाँ से अपना सामान समेट कर मेरी खुशबख्ती की तलाश में निकल गया। लेकिन ख्वाबों की ताबीर देर से मिलती। जंगल जंगल, सहरा सहरा, हम खुशबख्ती की तलाश में भटकते फिरे और एक शाम मेरे बाप ने एक वीराने में दम तोड़ दिया और मैं तनहा रह गया। जो ख्वाब मैंने देखा था वो मेरे लिए आज़ाब बन गया था। मुझे होश आ गया था और मैंने सोचा था कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। 5 बरस बीत गए थे, हम इस ख्वाब का शिकार हुए। मैं अब इसके तसव्वुर से लरजने लगी थी। तनाव वीरान जंगल में मैं बेयारों मददगार थी और खौफ से मेरा दम निकला जा रहा था कि रात की तारीकी में चंद घुड़सवार मेरे पास से गुजरे और मैंने उन्हें पुकारा। घोड़े रुक गए और फिर एक शख्स ने मुझे देखा और मेरे पास पहुंच गया। मैंने उसे अपनी बिपता सुनाई तो मुझे अपने साथ लेकर चलने पर रजामंद हो गया। उसका नाम फरनास था और वह अजबेला का हुक्मरान था। मेरी उम्र 16 साल की थी और बिलाशुबा में नहायत खूबसूरत थी। फरनास ने मुझसे शादी कर ली, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था। मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा, लेकिन उसकी पहली बीवी तराबला मुझसे बुरी तरह जलती थी। वो बे औलाद थी और उसे खौफ था कि अगर मेरे बदन से औलाद पैदा हो गई तो फरनास की निगाहों से हमेशा के लिए गिर जाएगी। वो मेरे खिलाफ साजिशों में लगी रही, लेकिन कभी कामयाब ना हुई। लेकिन फिर तकदीर ने उसे मुझ पर फौकियत दे दी और उसके यहाँ एक लड़की हुई। फरनास की तवज्जो मुझसे हटकी और मैं इस बात को बर्दाश्त न कर सकी। लड़की की पैदाइश के 3 साल बाद मैंने फरनास को जहर देकर हलाक कर दिया, फिर उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। लेकिन न जाने क्यों मैंने जब भी फरनास की बेटी को कत्ल करने की कोशिश की तो मेरी रूह कांप जाती थी। वो शैतान सिर्फ लड़की आज भी मेरी जान का आज़ाब बनी हुई है। फरनास की मौत के बाद मैं इस रियासत की मुतलिकुल अनान थी और मैंने खुद को शाकानिया कहना शुरू कर दिया था। शाकानिया की हैसियत से मैं एक मुहिम जो मशहूर हुई। जैतून के दरख्तों का सबसे बड़ा मरकज मेरी रियासत है और यहाँ से जैतून पूरे यूनान बल्कि दूसरे ममालिक में भी भेजा जाता है। इसलिए दौलत की मेरे पास कोई कमी न रही और मेरे हाशिया बरदार मेरी माफूक और फितर शख्सियत के चर्चे करते रहे। लेकिन अब मैं अपने ख्वाबों से मायूस हो गई थी। रफ्ता रफ्ता मैं जिंदगी के सारे ख्वाब भूल गई। मैं पूरे यूनान में अपनी कहानी के साथ मशहूर हूँ, लेकिन अब लोग भी मेरी इस कहानी को भूल गए होंगे। इक्यास, क्या तुझे देखकर मुझे वो कहानी फिर याद आ गई? बता, मैं अपनी सच्चाई दूसरों पर कैसे साबित करूं? मैं क्या बता सकता हूँ शाकानिया, मुझसे इज्तनाब न बरत।
آج پھر میرے دل میں میرا بچپن زندہ ہو گیا. تیرے سامنے میں وہ نہیں ہوں جو دوسروں کے لیے ہوں. بے شک میں نے تجھے خریدا، لیکن آج سے میں خود تیری غلام ہوں. مجھے اپنے قدموں سے روشنی دے دے. وہ جھکی اور اس نے میرے دونوں بازو پکڑ لیے. اور پروفیسر بڑی بکھلاہٹ کے لمحات تھے. اب میں اپنے بارے میں اسے کیا بتاتا، یہ میرے بس کی بات نہ تھی. میں پریشانی سے اس کی صورت دیکھتا رہا، لیکن عورت جس کماش کی تھی اس سے اندازہ ہو گیا کہ اگر اس کا طلسم ٹوٹ گیا تو وہ زندہ نہ رہے گی، اس لیے کچھ کرنا ضروری تھا. تب میں نے اسے مخاطب کیا اور بولا، شاکانیہ کیا تو مجھے سوچنے کی مہلت نہ دے گی؟ میں زندگی کی آخری سانس تک اپنے حق میں تیرے فیصلے کا انتظار کروں گی. میں جبر کرنے والوں میں سے ہوں، لیکن بھلا تیرے اوپر جبر کس طرح کروں گی؟ تیرا تصور کیا ہے میرے لیے؟ میں نے پوچھا. آسمان سے اترنے والے تو جس رنگ میں میرے سامنے آیا ہے وہ اجنبی ہے، لیکن دیوتاؤں کی باتیں دیوتا ہی جانے. میں وہ مقدس مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں جو کسی دیوتا کی ماں کا ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تو ہی میرے بدن میں ازمیر کے روح پھونکے. اور پروفیسر یہ روح پھونکنے کا معاملہ ہی ٹیڑھا تھا. اس نے ناک ذرا گھما کر پکڑ لی تھی، اور یہ تو میں ہی جانتا تھا پروفیسر کہ روحیں پھونکنے میں میری کیا حیثیت تھی. بہرحال مجھے سوچنے کی مہلت مل گئی. شاکانیہ یا تو گہرے نشے کے عالم میں تھی یا پھر پاگل کہ اس نے کئی سجدے مجھے کیے اور پھر میرے تقدس کو مد نگاہ رکھتے ہوئے بڑی نیازمندی سے مجھے میری قیام گاہ تک چھوڑنے آئی. جالوت اپنے دالان میں گہری نیند سو رہا تھا.